and personal transactions, and we did definition of drawing, and we did the meaning of accounting first of all, with all these terms: identification, measuring, uh, recording, classifying, etc. We we explained up to classifying yesterday. Okay, that's very right. Bete, I am also going to revise it once again. Yesterday we studied about, this is actually the name of the subject which is written here. These are the points which will help us to understand the meaning of accounting. Accountancy is a subject. In this subject, we do the recording of the financial transactions. So that process in which all these steps are being taken, this process is called as accounting. What do we call it? Accounting. It is the process which is done. कब करते हैं ये? Accountancy के अंदर. This is the subject. In this subject we will study about accounting. What is accounting? Accounting is the process of. What is the process of? Identification. I say identification. What is to be identified? क्या identify किया था हमने? We identified the financial business transactions. Yes, if I'm not wrong, you must have this thing in your mind. Yesterday we covered 2 points: identification of financial, because there are 2 types of transaction: financial, non-financial. Only financial we will take. Then business transaction. Business means which are related to the business. Some transaction which is your personal, we are not going to take it. So first point in this process, it is identification of financial business transaction. Number 2, it is measuring the transaction. Measuring the transaction means, what is the meaning of measuring? Measuring means जो हमने transaction identify की, for example, yesterday we identified a transaction salary paid to worker. तो worker को salary pay की, salary is financial, yes. Worker business का ही होता है, personal तो नहीं है हमारा, no, it is business transaction. So first point में हमने identify किया salary paid to worker, और second point में we will identify measuring the transaction. Measuring means how much amount is being paid. 2,000, 5,000, 7,000, how much amount? So for example, I have taken rupees 5,000 is being paid as salary. So that is the point of measuring. ठीक है जी? उसके बाद हमने किया R से है recording. What is recording? Recording means this transaction, salary pay करी तो it is supposed to be written somewhere. Where we write it? कहाँ लिखते हैं हम उसको? We write it in a book. And what is the name of this book? I have told you yesterday. You can please tell me. What is the name of this book? जिसमें I am going to write this salary है, say 5,000 की. What is the name of this book? Yes. Okay. Anshul wants to answer. Yes, Anshul, you can unmute yourself. Journal. Yes, the name of this book is journal. Now Anshul will tell why it is called as journal, or you can say what is this special feature of journal. No idea? Okay, Devanshi, you can answer. Ma'am, because it is the book of original entry. Because it is the book of original entry, it's a feature. एक आपको मैंने स्पेशल बात बताई थी इस बुक के बारे में. I want to know that. Anyone else? Okay, चलिए मैं बता देती हूँ फिर से. थोड़ा इसको ना एक्टिव रखा करो क्लास में. Okay, यादवी, you want to say? यादवी. मैम इसमें सबसे पहले एंट्री करते हैं.
वो तो बेटे उसने भी यही बोला ना, अभी बेटी लड़की ने बोला कि इसमें सबसे पहले एंट्री करते हैं, तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज ट्रू। इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है, इट इज अ कॉमन बुक, it is a common book in which the entries related to various aspects is being recorded. इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। मैंने आपको बताया था दिस इज अ जर्नल बुक। जर्नल मीन्स इन विच ऑल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड, चाहे वो कैश की हो, क्रेडिट की हो, सेल की हो, फर्नीचर की हो, सैलरी की हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की हो। दिस इज द कॉमन बुक, दैट इज द रीजन व्हाई इट्स नेम इज जर्नल। Journal means it is the book of original entry in which all the entries related to all items are being recorded. ठीक है जी, याद रहेगी ये बात अब आपको। प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। दिस इज अ बुक इन विच एवरीथिंग विल बी रिटन। आई यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जैसे कैश भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दी, क्रेडिट भी लिख दिया, बैंक भी लिख दिया, फर्नीचर भी लिख दिया, कार भी लिख दी, सो ईच what else, मशीनरी भी लिख दी। so this is a book in which I am writing everything, A से लेके Z तक सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है जी, this is called as book of original entry। now इस अकेली बुक से भी काम चल सकता था, एक ही बुक बनाते तो भी अकाउंटिंग चलती। नो, व्हाई? बिकॉज बेटे एक बुक में जब एक अकाउंटेंट सारी एंट्रीज लिखता है, यू कैन इमेजिन वो बुक कितनी बड़ी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक दी, उसने बोला सारी एंट्रीज लिखनी है। 1 ईयर में, ड्यूरिंग एन ईयर यू मे बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, से 5000 एंट्रीज आर देयर, तो आपकी बुक कितनी मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी, इतनी बड़ी किताब बन जाएगी जर्नल। फॉर एग्जाम्पल आपने वही बुक मेंटेन करी इतनी बड़ी, जैसे ग्रंथ होता है, तो ऐसी बुक है वो। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आपका मालिक आके कहता है, ओके अंशुल यू आर माय अकाउंटेंट, आपको मैंने साल के शुरू में बोला था एक बुक मेंटेन करना, करी आपने? ओके यस मैम मैंने करी है। तो मैं पूछ रही हूँ ओके बताओ मुझे आज की डेट में मेरे पास कितना कैश है, टेल मी हाउ मच इज द क्रेडिट, हाउ मच इज द सैलरी, हाउ मच इज द रेंट। तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दैट बुक। इतनी बड़ी बुक है, उसमें 5000 एंट्रीज है, आप उसमें से ढूंढोगे। सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन अकाउंटेंट to do this work at the end of the year. If someone asks him, he will not be able to do. So this is a book just to make record, पर ये किसी काम की किताब नहीं है, सिर्फ एक बार रिकॉर्ड रख के हमने प्रूफ रख लिया, that's all. Otherwise later on ये हमारा कोई भी पर्पस नहीं कर पाएगी। So to help us, अकाउंटेंट को इतनी बल्कि बुक ना पढ़नी पड़े, ऐसी बुक में से ढूंढना ना पड़े, so that is the reason why the next point classification is being done. What is this classification? जिसमें हम separate books बना देते हैं। For example, I have made say 4 books example के लिए ले रही हूँ। सैलरी की मैंने अलग बुक बना दी, कैश की अलग बुक बना दी, फर्नीचर की अलग कर दी, और क्रेडिट वाली मैंने अलग कर दी कि मैंने इतने लोगों को क्रेडिट दिया। So now if the owner comes and asks Anshul how much salary we have paid during the year, अंशुल को 1 मिनट लगेगा, वो कहेगा ये देखो सर इस अकाउंट का ये है हमारा सैलरी की बुक, सैलरी की बुक का टोटल है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस। तो he will take just 1 minute to tell you the amount of salary। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी के लिए सेपरेट बुक लगाई थी। अभी इसका ओनर कहता है कैश बताओ, तो he will be able to tell सर हमारे पास 25,000 cash is with us, 1 lakh rupees का furniture is with us, and 50,000 rupees हमारा अभी तक क्रेडिट चल रहा है जो हमने लोगों से पैसा वापस ले लिया। So this is a simple way of classification। जो हमने जर्नल में खिचड़ी पकाई थी हमने उसको सेपरेट कर दिया। We have simplified this work, simplify किया ताकि हमें ही कंफर्ट हो सके। ठीक है जी। And I told you yesterday what is the name of these books when I classify, हम इनको क्या बोलते हैं, what do we call them? Any one of you can raise hand। okay, हरमीन कौर ने सबसे पहले किया है। हरमीन, yes बेटे। Ledger. Yes, they are called as ledger accounts। ठीक है जी, अकाउंट्स भी साथ में बोलते हैं इसको, they are ledger accounts। ठीक है जी।
कौन से लेजर अकाउंट्स होते हैं? जब हम सेपरेट लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एस, एस फॉर समराइजिंग। ठीक है जी। अब समराइजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल, अब अंशुल इज अगेन द अकाउंटेंट। अब ओनर आके कहता है सैलरी बताओ, कैश बताओ, सब बता दिया उसको। ओनर कहता है आई वांट टू नो, मुझे नहीं जानना सैलरी, कैश, फर्नीचर, कुछ नहीं जानना। आई जस्ट वांट टू नो कि नेट प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बस इतना बता दो। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू नो। दिस इज व्हाट द ओनर वांट्स। तो व्हाट अंशुल विल डू? ही विल मेक अ समरी, he will make a summarized form. जैसे for example the accounts, ये जो books of accounts बनती है, they are used by different persons outside the business. For example, you are the owner of the business, you are going to the bank, you are approaching the bank and asking them to lend you some loan. तुम कहते हो मुझे जी 50 लाख का लोन चाहिए, मुझे न्यू मशीनरी लेनी है, बैंक आपको लोन देगा कि नहीं देगा? What is your call? Any one of you can try. जसकरण आप बताइए। You are not able to unmute yourself. मैम बैंक लोन नहीं देगा, वो पहले क्वेश्चन करेगा कि पहले आपकी बुक्स अप टू डेट है, फिर ही वो लोन सैंक्शन करेगा। नहीं ओके, चलिए, थोड़ी सी बात आपकी सही भी है, थोड़ी सी मैं कर देती हूँ। Whenever a bank, a business is approaching a bank for the loan, the bank will ask for your financial statement. बैंक कहेगा 50 लाख रुपीस देखे भी हैं कभी? Have you ever seen? Do you think you will be able to like repay us इतना बड़ा अमाउंट हम तो दे आपको भाई? First of all, we would like to see what is the status of your business. तो अगर मैं, अब मान लो अंशुल अकाउंटेंट है, मैं ओनर हूँ, मैं लोन लेने गई, बैंक ने बोला अपनी किताबें लेकर आओ, अकाउंट्स लेके आओ, तो अंशुल को मैंने बोला अंशुल ने ये सारा कुछ दे दिया, सैलरी की ले जाओ, कैश की ले जाओ, ये भी ले जाओ। इस तरह से 45 बुक्स थी, तो अंशुल ने सारी दे दी, मैं बैंक में ले गई, ये देखो 45 बुक्स। बैंक वाले कहेंगे हम अकाउंटेंट है क्या, हमें नहीं समझ आ रही है आपके बुक्स, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज 45 बुक्स। सैलरी की अलग ले आए, कैश की, हमने क्या करना इससे? We want your financial statement, we want your financial status. हमें समरी दे दो, हमें एक फाइनल स्टेटमेंट बताओ जिसमें ये लिखा हो कि इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपके बिजनेस में। ठीक है जी। फॉर दैट रीजन समरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। सो समरी क्या होती है? एक समरी के लिए हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए और थोड़ा सा समझ लो, रेस्ट वी विल डू इन दी अपकमिंग चैप्टर्स। तो समरी के नाम पे हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रायल बैलेंस, एक हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये P&L लिखा है ना मैंने, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट एंड लॉस। और एक हमारे पास होता है बैलेंस शीट, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है, यू विल राइट ऑन योर ओन, मैं बता रही हूँ। एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है B&S का मतलब बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे अकाउंट्स का ना एक ही पेज पे, जैसे 45 बुक्स मैंने आपको बताई, उन सबको एक ही पेज पे उनका बैलेंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, एक स्टेटमेंट आएगी, इसका नाम रखा है ट्रायल बैलेंस, इसमें लिख देंगे ओके ड्यूरिंग द ईयर टोटल सैलरी कितनी थी 5 लाख, कैश कितना है हमारे पास 25,000, क्रेडिट कितना है जो हमने लोगों से वापस लेना पैसा 50,000, फर्नीचर हमारे पास कितना है, कैश कार हमारे पास कितनी थी, मशीनरी हमारे पास कितनी थी। So all these items are to be written like this. तो ये स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस है, दिस इज वन सिंगल स्टेटमेंट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल, इसीलिए इसका नाम ट्रायल बैलेंस है, इन विच बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स नहीं हमने पढ़ने, सिर्फ सबका बैलेंस देख लेना। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचो कि आपके पापा के 4 अलग अलग बैंक में अकाउंट है, तो आपने एक स्टेटमेंट बनाई है, हर बैंक का अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, बस दैट्स ऑल. सो दिस इज ट्रायल बैलेंस. द अदर सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाम से पता चल रहा है, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ और आपको नेट लॉस हुआ. ये स्टेटमेंट आपको ये बताती है. तो जब भी बैंक आपसे मांगेगा कि मुझे दिखाओ अपनी फाइनल अकाउंट्स, तो आप ये वाली स्टेटमेंट दिखाओगे, ये वाली स्टेटमेंट दिखाओगे और एक बैलेंस शीट दिखाओगे. नाउ व्हाट इज दिस बैलेंस शीट? बैलेंस शीट. Balance sheet will help us to know what is the financial position of the business. आपकी financial position पता चलती है. ठीक है जी. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. There is a fruit seller near your house. ठीक है, आपके घर के पास एक फ्रूट बेचने वाला बंदा है. वो रोज आता है, रेडी से लेके फ्रूट बेच के चला जाता है. सो यू, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. इज ही फाइनेंशियली गुड और फाइनेंशियली बेटर देन धीरूभाई अंबानी? और मुकेश अंबानी से बेटर है वो या मुकेश अंबानी बेटर है? फाइनेंशियल स्टेटस हम देखते हैं. कंपैरिजन थोड़ा गलत सा था ना, बस ये तो अंधे को भी पता चल जाएगा कि वो ज्यादा अच्छा है. कोई और करते हैं कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, on one side we have Mukesh Ambani, on the other hand we have Ratan Tata. Now it's थोड़ा लेवल है सेम सेम. तो रिलायंस इंडस्ट्री एक तरफ है, टाटा इंडस्ट्री एक तरफ है. इफ आई विल आस्क यू कि दोनों में से किसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी है, हाउ विल यू बी एबल टू टेल मी? कैसे बताएंगे? रेज योर हैंड, गिव इट अ गो, लाइक कुछ भी ट्राई कर लो. हरमीन कौर, यू वांट टू से समथिंग? वेट अ मिनट. नो? ओके. विश्वजीत, यस बेटे, आप बताइए. विश्वजीत बेटे, आई कांट हियर यू. कुछ प्रॉब्लम है शायद आपके माइक में. ईयरफोन्स उतार के बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. टैली कर सकते हैं. आवाज आ रही पर समझ नहीं आ रही, फिर से बोलना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बेटे ठीक है, यू आर राइट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता चलेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा फाइनेंशियली गुड है, ये नहीं है? हाउ? उनके लॉसेस, इन्वेस्टमेंट और लॉस रेशियो. लॉस की प्रॉफिट? प्रॉफिट देखेंगे. दोनों चीजें देखेंगे. दोनों चीजें देखेंगे. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं. एक है टाटा, एक है रिलायंस. टाटा ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और 10% प्रॉफिट अर्न किया. रिलायंस ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया लेकिन 5% प्रॉफिट अर्न किया. तो कहने को प्रॉफिट तो रिलायंस का ज्यादा है, बट देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी तो 10% थी टाटा की, बेटर हुई ना. So from profit we can't judge the two companies. Let me be very clear here. Profit से somewhere I can or we can make a decision, but the better way to decide is to see financial position की. जब बेटे हम बात करते हैं, ये हमें ये वर्ड आपके पीछे लगा रहेगा, पूरी बुक में हमने इसी को बार बार पढ़ना है. ये बैलेंस शीट जो है, ये जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे लाइफ टाइम आपके पीछे, मतलब आपके साथ ही रहेगी. बैलेंस शीट एक ऐसी शीट है which is prepared by every businessman at the end of the year to see two things. आप किसी भी बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है ना, तो हम उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, हम उसकी वेल्थ देखते हैं, हम देखते हैं उस बंदे के पास कितना कुछ है. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ विश्वजीत की. विश्वजीत, हाउ मच प्रॉपर्टी और थिंग्स डू यू ओन? यू मीन्स यू एंड योर फादर, लाइक तुम्हारी फैमिली का पूछ लिया. झूठ मूठ बोल सकते हो, नो नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो. अराउंड
हाँ, दो sorry. करोड़ होगी, No, I'm दो not करोड़ asking you amount. I'm asking you things. Which all items do you all possess? 10 to 12, 10 से 12। Okay, let me give you my example. For example, I have this phone. This is my property. I can sell it and get some money back. I have this laptop on which I am teaching you. I can sell it and get some money. I have this house जिस घर में मैं रहती हूँ. This is also my property. I have a car. I have a scooter. I have a cycle. All these are my property. I have TV, fridge, AC, cooler. All these are my properties. We have family land. एग्रीकल्चर लैंड है कुछ, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है. मेरे बैंक में कुछ बैलेंस है. आई हैव सम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, दैट इज आल्सो माय प्रॉपर्टी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल financial position of a person, which can be evaluated with the help of assets that we possess. Assets, this is a very much new term. You can write it down. Please note it down. ASSETS. Assets. Assets होते हैं आपकी मतलब जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, जिस चीज पे आपका हक है, जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्कूल खोला, अब उस स्कूल से मुझे कमाई आ रही है. मैंने ट्यूशन सेंटर खोला, मुझे पैसा आ रहा है. दैट इज माय एसेट. मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, अब मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरा डॉक्टर बच्चा मेरा एसेट है. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं. You will become assets for the family. How? Because तुम उनको पैसा कमा के देने वाले हो. आप क्या बन जाओगे? Assets. Am I clear to you? Now Vishwajit, you can tell what are your assets. आपके और आपकी फैमिली के assets. लाइक वही हुए, हाउस है, हाउस, फोन, कार, लोग, लाइक जो एवरी फैमिली ओन करती है मोस्टली, वही कॉमन थिंग्स हैं. ठीक है. So assets is very much clear. Okay, if I ask you about a business, अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस के assets क्या होते हैं? अब क्योंकि बैंक ने तो बिजनेस का देखना है, आपका घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी, वो सब तो नहीं देखेगा. बिजनेस में क्या एसेट्स हो सकते हैं? Yes, anyone? द Okay, yes. प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक जो मशीनरी वगैरह होती है, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. Okay. और जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो. Okay, Vasu wants to say. Vasu, I can't see you on the screen. Please raise your hand once more so that I can ask you to unmute. Okay, now you can speak. जैसे मैम जिसकी फैक्ट्री है मैम उसकी ये देखेंगे उसकी मशीनरी कितनी है. जिसकी मैम जनरल स्टोर है उसका ये देखेंगे उसका स्टॉक कितना पड़ा है. Very good. यही चीजें है मैम जिससे पता चलता है. ठीक है जी. वासु तो is लोन very लेने good. से पहले मैम एक बार मैम वो भेजते भी अपने बैंक पे लोगों की, आके जाके चेक करके वहाँ पे फोटो भी क्लिक करते हैं वो आके हमारी जगह की. वेरी गुड. तो फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री की, पहले छोटी दुकान की बात करते हैं. मेडिकल स्टोर है हमारे घर के पास फॉर एग्जांपल, उनकी बात करें तो व्हाट एसेट्स डू दे हैव? एक उनकी दुकान की जमीन, दुकान की बिल्डिंग जो बनी हुई है, उसमें जो फर्नीचर लगा वो भी उनका एसेट है. पंखा, एसी, कूलर जो लगा वो भी उनका एसेट है. बल्ब लगे, ट्यूबलाइट लगी है, जो लाइटनिंग हुई है सीलिंग वगैरह की, वो भी उनका एसेट है. देन उन्होंने अगर अंदर फ्रिज लगाए हुए हैं दवाइयां रखने के लिए, वो भी उनका एसेट है. जितना स्टॉक पड़ा है मेडिसिन का वो भी उनका एसेट है. ठीक है. सो ऑल दीज, और बैंक में उनका कितना पैसा पड़ा हुआ है जो लोगों से रोज रोज आता है, तो ऑल दीज आर देयर एसेट्स. व्हेन वी कम टू अ बिग कंपनी, कोई बड़ी कंपनी की बात करें तो मशीनरी जितनी भी उनके पास है, फर्नीचर जितना उनके पास है, रिसेप्शन है, सोफा लगा है, कंप्यूटर हैं कितने सारे, एसी हैं, वेंटिलेटर्स एंड ऑल दैट, जो भी मतलब उन्होंने स्टफ खरीदा हुआ है अपनी कंपनी में, ऑल दैट स्टफ, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, जमीन उनकी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग. फिर उन्होंने गाड़ियां भी तो रखी होंगी ना, वर्कर्स को लाने के लिए बस रखी हुई है या वैन लगी. यस वासु. वही मैम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखी होती है. तो ऑल दीज आइटम्स व्हिच यू कैन इमेजिन. जैसे फैक्ट्री की बात करें तो वहां भी रॉ मटेरियल होता है, तो दैट इज आल्सो, उन्होंने कुछ यूज टूल्स लाके रखे हैं, कुछ स्टोर्स में स्टेशनरी का सामान रखा हुआ. ऑल दीज थिंग्स आर देयर assets. So balance sheet will tell us the financial position and how we can judge the financial position of an individual with the help of assets. Am I clear to you, bete? Am I clear? Yes. Okay.
वन मोर थिंग, हर एक बिजनेस जो है या हर एक इंडिविजुअल सिर्फ कैश पे या एसेट्स पे ही नहीं चलता. ईच वन ऑफ अस ओ सम लायबिलिटीज टू, कुछ हमारे उधार भी होते हैं. तो बैंक ये नहीं करता कि सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी देखी, आपकी फोटो क्लिक करी और आपको लोन दे दिया. बैंक एक चीज और देखता है, आपने ऑलरेडी तो नहीं कोई लोन लिया हुआ किसी और बैंक से. क्या पता उसी दुकान पे आपने 4 जगह और लोन लिया हो. क्या पता आपकी ऑलरेडी कोई उधार चल रहे हो. आपने जितना सामान स्टॉक रखा अपनी दुकान पे सारा उधार पे है. So bank will check that too. This is called as liabilities of the business. Liabilities, please write it down once more. This is another new term. Liabilities, Liabilities. Liabilities. Liabilities होती है हमारी obligations which we are supposed to pay. The obligations of the business. ठीक है जी. तो इफ यू वांट टू सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, यू आर सपोज्ड टू चेक बोथ. एसेट्स भी देखोगे, लायबिलिटीज भी देखोगे. लायबिलिटीज क्लियर है आपको? उधार, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो लायबिलिटी मींस उधार जो बिजनेस ने पैसा अभी पे करना है टू सम अदर आउटसाइडर्स. इज इट क्लियर? सो दीज आर 3 summaries, 3 financial statements और 3 final accounts. 2 actually final accounts से ये statement भी है, but ये तीनों summary का part है. Example के लिए आपको बता दिया है, नीचे वाला मैं रख कर देती हूँ. I hope I am very much clear to you and I am trying to go so slow कि हमारी एक definition पूरी नहीं हो रही. आज भी lecture over हो जाएगा लग रहा है. Next is A. A means analyzing and interpreting. Now what is the meaning of analyzing and interpreting? अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया समरी बन गई. समरी में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बैंक के पास आ गई. अब बैंक क्या करेगा? बैंक विल एनालाइज दैट. एनालाइज करेगा कि इफ दिस कंपनी इज हैविंग गुड फाइनेंशियल पोजीशन और बैड फाइनेंशियल पोजीशन, इफ दिस कंपनी इज हैविंग गुड प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस में जा रहा है, if this company has more assets or more liabilities. So analyze करेगा और interpret करेगा. For example, उसने analyze किया और interpret किया कि this company has a good financial position. ये उसकी interpretation. ये भी हो सकता है कि उसने analyze किया और interpret किया कि this company has a poor financial position. हमने इनको loan नहीं देना. तो it can be sanctioned, it can be cancelled. Both ways it can go. तो एनालाइज करके इंटरप्रेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? क्लियर है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्लियर है बेटे? ये तो सिंपल वर्ड्स हैं. जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है, फॉर एग्जांपल आपकी रिपोर्ट कार्ड है, फॉर एग्जांपल समरी इज योर रिपोर्ट कार्ड. तो रिपोर्ट कार्ड आपके पापा ने देखी, 10th का रिजल्ट आया, आपके हाथ में आ गई रिपोर्ट कार्ड. पापा क्या करते हैं? उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. एनालाइज करते हैं कि अच्छा इसमें नंबर कम है, इसमें कम है, इसमें कम है. इसकी तो ट्यूशन भी जाता था, फिर भी नहीं आता इसको कुछ. ट्यूशन कराओ इसकी, इसको कुछ नहीं आ रहा. इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं आ रहा, इसको मैं खुद पढ़ाऊंगा. ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मींस मेक अ फाइनल डिसीजन, मेक लाइक जैसे अपना एक वर्डिक्ट देना कि ओके सो दिस इज दिस, ये ऐसा है, इट इज गुड, इट इज बैड, व्हाटएवर. सो इंटरप्रिटेशन विल बी देयर. लास्ट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अब कम्युनिकेशन मींस जो आपने इंटरप्रेट किया, आप कम्युनिकेट तो करोगे ना कि वी हैव इंटरप्रेटेड दैट द कंपनी हैज. मैं आपको इंटरप्रिटेशन के एग्जांपल लिख रही हूं. द कंपनी हैज गुड फाइनेंशियल पोजीशन. ये है इंटरप्रिटेशन बैंक वालों का. तो अब वो कम्युनिकेट करेंगे ना इस चीज को. ये सीईओ मतलब कंपनी लिखा है. The company has good financial position. If it has good financial position, this will be communicated to the businessman कि okay, we are going to sanction your loan. और vice versa can be there. जैसे मान लो मालिक ने हमें, मेरा अकाउंटेंट कहाँ गया? अंशुल was my accountant. तो मैंने अंशुल को बोला था कि बेटे, not बेटे, he is my employee. तो मैंने अंशुल को बोला कि okay, you are supposed to do recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting. और फिर मुझे communicate करो, मुझे बताओ कि what is the final result. ठीक है जी? So this is the process of accounting.
Just wait for a second. I am going to start sharing the screen and we are going to discuss this definition quickly from the notes which I have sent you yesterday. ठीक है जी? All of you have gone through these points. ये आपको मिल गया था बेटे कल सबको? Have you got it yesterday? चलिए जी, so let us read it from here. अलग अलग definitions दी हुई है, यहाँ से पढ़ लेते हैं. First one, accounting is the art. Art word क्यों use किया बेटे? ये एक art होती है. For example, the way I am preparing my accounts may be different from that of Anshul. Anshul जैसे अकाउंट प्रिपेयर करेगा वो उसके ऊपर है, मैं कैसे अकाउंट प्रिपेयर करूंगी वो मेरे ऊपर है, क्योंकि थ्योरी दोनों ने पढ़ी, अकाउंट्स मैंने भी सीखा, अंशुल ने भी सीखा, बट एवरीवन हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ डूइंग द सेम. आर्टिस्ट वही होता है, अपने स्टाइल में करता है. देखो डांस सब सीखते हैं, लेकिन कोरियोग्राफी जब वो करते हैं तो अलग अलग टाइप का एग्जीक्यूशन होता है. सिमिलरली अकाउंटिंग में भी यही है, एवरीवन लर्न्स द सेम थिंग बट दे like present the answers or the material in some unique way. So that is why it is said that accounting is the art of doing what? Art of recording. आपको पता है जर्नल में, क्लासिफाइंग लेजर में, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि व्हाटएवर यू वांट टू एनालाइज यू शुड बी एबल टू डू दैट. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि वही आइटम हमने लिखनी है जो फाइनेंशियल है, जो टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो सकती है. द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, हमने पहले पढ़ लिया है ये. एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय American Institute of Certified Public Accountants. So this is the so far best definition I know. Next यहाँ से देखिए, these all points we have already covered in this 2 days lecture. These are also called as characteristics of accounting. Accounting के क्या characteristics है? Number 1, that we are going to identify financial transactions and events. We have discussed it enough. I don't think we need to repeat. अगर कोई doubt होगा तो you can ask me again. In case a new word comes to you, कोई आपके सामने new word आ जाता है जो आपको लगता है मुझे नहीं पता, प्लीज राइट इट डाउन इन अ कॉपी, आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास कि मैम कल मैंने पढ़ा उसमें ये वर्ड आ रहा है, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस वर्ड. सम वर्ड्स में भी जो हमने आगे चैप्टर्स में पढ़ने हैं तो मैं अभी आपको नहीं बता रही, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. बहुत सारा कुछ इकट्ठा आ गया तो आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज इजी एंड सिंपल एज पॉसिबल. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डन. मेजरिंग, हमने मेजर किया है कि इन टर्म्स ऑफ मनी कितना अमाउंट बनता है, दैट इज आल्सो डन. थर्ड इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं? सी इट इज रिटन हियर, वी आर रिकॉर्डिंग इन जर्नल. ठीक है, इसके आगे इन्होंने कुछ और वर्ड्स दिए, कैश जर्नल, कैश बुक, उसको अभी छोड़ दो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. देन क्लासिफाई हम किस में करते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में. ठीक है जी, सबके अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं. देन वी कम टू समराइज. समराइज हम किस में करते हैं? देखो हम बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं ना, जो बुक में दिया है एज इट इज वी हैव डन. ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इन्होंने मतलब देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो दे हैव गिवन दिस नेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो यू आर जस्ट कीप इन माइंड P&L अकाउंट, दैट्स इतना इनफ है आपके लिए. एंड देन द लास्ट वन इज बैलेंस शीट. सो नीचे लिखा है the above statements are collectively called as final accounts. एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, what do you know about financial statements या final accounts, या what are final accounts, financial statement, या which statements are called as final accounts. So you can write these 3 names, right? Next is analyzing and interpreting. Analyzing and interpreting of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment. जैसे बैंक ने जजमेंट की कि लोन देना है, so this type of judgment can be done with the help of analysis and interpretation, for which helps the planning in planning for the future in a better way. Last one is communicating. What do you mean by communicating now? Finally, the accounting function involved communicating this data. ये जो भी डाटा हमने किया इसको हमने कम्युनिकेट करना है. किसको कम्युनिकेट करना है? To the users. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, to the users of accounting. Who are the users? ये भी आगे इसी चैप्टर में क्वेश्चन आने वाला है.
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हु आर द यूजर्स? जैसे बैंक हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट से देगी, जिसने इन्वेस्ट करना है वो भी आपके अकाउंट से देखेगा, ओनर भी आपके अकाउंट से देखेगा. सो whosoever is interested to see the accounts, they will check it out, right? Am I clear to you, bete? In case you have any doubt, you can ask me now.